ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो हमें अपने हर नौजवान को तवज्जो देनी है, उसकी बातों को सुनना है, ताकि हमारा थिंक टैंक जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, ना कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। तो हम सबको कोशिश करनी है अपने पाकिस्तान के यूथ के लिए। तो मैं हमारी CEO मिस आयशा, तो इनसे प्रॉपर्टी वॉलेट की और ये किस लिए इन्होंने माशाल्लाह से इस चीज़ के बारे में सोचा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ही क्यों। तो आजकल तो कॉल सेंटर हैं और बहुत सारे लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो हमारा प्रॉपर्टी वॉलेट बनाने का मकसद। Thank you, AJ. Assalamu alaikum, everybody. First of all, thank you very much, especially Landtrack and Mr. Atif Ka, for sort of giving us this platform. We don't have a presentation. We didn't want to do that because I think the idea is to sort of talk to you all about where we come from and how we fit in. This is an industry that we're all very new to, in all honesty, but a lot of you here have spent all your lives building it to the place it is at this point. It's a huge industry in Pakistan, but I feel like, in all honesty, it's still inaccessible to many. It's in the hands of a few. It could have a potential to do a lot more for a lot of us, and I think that is where Property Wallet sort of comes in. All four of us might not look like we have anything to do with real estate because we do all come from very different backgrounds. We were not in Pakistan initially. I was in the US. I was in Los Angeles, and I was at Harvard for my master's. My other co-founders were in Turkey, the UK, sort of doing our own things. But then this idea of coming back and giving back to your country, which I think, alhamdulillah, still exists in a lot of us, and which is what's going to take, inshallah, Pakistan forward, is when we decided to come back, and in some shape or form, each one of us were involved in the real estate market. Some of us were involved with real estate marketing, some of us were in finance, and one thing we sort of realized is that there's a huge gap when it comes to the real cog of the industry, which is the real estate agent. Without the real estate agent, I feel like the real estate industry just cannot perform altogether, and that is where Property Wallet comes in. Property Wallet is something that provides a 360-degree solution to the real estate agent and sort of builds this connectivity between the buyers, the sellers, the builders, developers, and then people who actually go to the client and bring the money, right, which is the real estate dealer. I think we have a huge dealer network across this country, which it's very difficult to put a number to because this industry is largely informal, right? So there's two aspects of what Property Wallet is doing. Not only are we trying to formalize an industry which is largely undocumented and largely informal, which sort of, I think, aligns with the goals overall this country has in terms of more financial viability and stability. And secondly, sort of empowering the mere cog of the industry, which is our real estate dealers and agents. So I'm going to forward this to my other co-founder, Usman, who will tell you a little bit more about what the app is and what we actually do. Is this working? Okay. So Property Wallet है क्या and Property Wallet start कब हुआ और हमारी progress क्या है? So the Property Wallet app basically जो है वो 3 areas को cover करती है for the real estate agent. Starting with management, वो बड़ा simple सा एक SaaS platform है जिसमें वो अपनी इन्वेंट्री ऐड कर सकता है, अपनी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग कर सकता है। जैसे अभी रियल एस्टेट एजेंट्स पेपर पेंसिल पे अपना काम लेके चल रहे होते हैं, तो हमने उसको डिजिटलाइज करके उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट दे दी है। उसके बाद उसके थ्रू वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है जो यूजुअली ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू करता है। देन मूविंग ऑन, ही कैन मैनेज हिज स्टाफ, ही कैन मैनेज कमीशंस, ही कैन क्रिएट अ प्रॉपर रिसीट, अ डिजिटल रिसीट, एंड उसके अलावा पूरी उसकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग उसकी टीम की, उसकी अपनी सारी हमने उसको डिजिटलाइज करके दे दी है। उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट वीव डन इज़ वीव क्रिएटेड अ सप्लाई चेन। द सप्लाई चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द builder and goes to the agent. Strictly speaking, we're a B2B platform. So हम dealers को जो है inventories हम ला के देंगे. We'll go to projects. We'll tell them कि भाई हमारे पास इतने agents हैं and we'll take their projects and we will provide that to the dealer to sell. Now how that works is कि dealer through the app, he can look at the inventory, he can see, he can book it for his client. The client can make the payment through our digitalized channel. We have OneLink as a partner. एंड उससे मूविंग ऑन वी हैव द थर्ड मॉड्यूल दैट इज़ एजेंट लिस्टिंग। वहाँ पे एजेंट क्या कर सकते हैं कि उसकी कोई इन्वेंट्री फंसी हुई है वो उस पर लिस्ट करके दूसरे एजेंट्स को दे सकता है एंड ही कैन वर्क विद देम एंड सेल देम। करंटली वी आर स्टैंडिंग ऑन 55,000 डाउनलोड्स। वी लॉन्च्ड अराउंड March 1st and alhamdulillah our response has been great and we will inshallah keep on building on this. Additionally, one more thing, we're also giving a website
to every agent that subscribes. So it's a very easy to use, like through the app they can create a stagnant website which is very like उनकी branding पे होगी, and all of this starts from like 2500 rupees per month. So moving on, Azan, tell me what? ओके सो जैसे आपको उस्मान ने बताया कि दो हमारे जो मेन मॉड्यूल्स हैं, पहला मॉड्यूल जो हमारा है वो रियल एस्टेट एजेंसी मैनेजमेंट को लेके है। तो मेरे हिसाब से जो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि 90% जो रियल एस्टेट एजेंट्स या एजेंसीज़ हैं वो मिड स्केल या स्मॉल स्केल एजेंसीज़ होती हैं। मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज़, उनके पास तो ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे टूल्स होंगे जो वो यूज़ करके अपना काम एफिशिएंट बनाएं, अपने पास ऐसे उनके पास टूल्स हों जो उनको सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प करें। तो उसी 90% की जो हमारी टारगेट मार्केट है उसी को टारगेट हम करना चाह रहे हैं। उनको भी एक प्रोफेशनल टूल देना चाह रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी एक प्रेजेंस बनाएं, एक डिजिटल प्रेजेंस बनाएं वेबसाइट पे, जैसे इन्होंने मेंशन किया। जो एक वेबसाइट हम लोग दे रहे हैं विद इन आवर सब्सक्रिप्शन जो 2500 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर अगर उसको एक प्रोफेशनल वेबसाइट जिसमें उसका पूरा एक कैटलॉग होगा प्रोडक्ट्स का, अपने स्टाफ का ओवरव्यू होगा, अपनी कंपनी का ओवरव्यू होगा, तो वो एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। और दूसरा जो एक इसका मॉड्यूल है हमारा वो प्रॉपर्टी वॉलेट इन्वेंट्री का है, जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जिसके पास एक आम एजेंट को उसका एक्सेस नहीं होता, उसको हायर कमीशंस में ऑफ़र कर रहे होंगे जो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं और सेल करके मार्केट से ऊपर के कमीशंस कमा सकते हैं। तो वो भी हमारे माशाल्लाह से मैकेनिज़्म जो है बिल्ड हो चुका है। उसके अलावा जो हमारे थोड़े बहुत IT के जो टूल्स वगैरह हैं उसके बारे में अज़लान आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा प्रोडक्ट साइड देखता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अभी हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो हमने रमज़ान के एंड में लॉन्च की थी अपनी ऐप, जो कि बेटा लॉन्च थी। हमारे 15,000 एक्टिव एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं ऐप पे, और उनका जो मेन मसला आ रहा था शुरू में वो ये था कि हमें समझ नहीं आ रही यूज़ किस तरह करें। तो हमारी माशाल्लाह से 25 लोग की IT की टीम है और हमने AI पावर्ड टूल्स पे थोड़ा सा काम किया है। तो बेसिकली अगर कोई भी उसको ऐप में मसला आता है तो हमारा एक चैटबॉट वहाँ पे बना हुआ है जो कि उसको हेल्प करता है कि हाँ अगर मैं लिस्ट नहीं कर पा रहा चीज़, या फिर मैं इन्वेंट्री डाल नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह लोगों को डालूँ, तो वो आपको हेल्प करता है वहाँ पे। इसके साथ साथ एक वॉइस रिकग्निशन का भी सिस्टम आ रहा है जो कि आप उससे बात करोगे वो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आगे भी चल रही हैं, और हमने जो सारा फीडबैक वगैरह लिए वो हमारे बेटा लॉन्च से लिए, जिसमें जो एक्टिव यूज़र्स हैं उनसे पूछा है। तो हमने पूरी जो ऐप है वो रियल एस्टेट एजेंट्स के फीडबैक के ऊपर ही बनाई है कि आप ये चीज़ चाहते हैं तो हम ये चीज़ आपको दे देंगे। तो अच्छा है, इसमें हम लोग हर दिन अपडेट्स करते रहते हैं वीकली, और उसके हिसाब से चीज़ अपग्रेड होते रहती है। तो हमारे पास पूरी पीछे टीम है, तो उसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी अपडेट्स भी कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपसे और ये एक मिनट आपकी बात एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के बीच में जो एक गैप है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भाई अगर एजेंट ने फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोजेक्ट के 2 यूनिट सेल कर दिए तो उसको इस चीज़ की कमिटमेंट नहीं है कि उसको कब कमीशन मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो मिलेगा भी या नहीं। तो वो वाली चीज़ भी, जो वो प्रॉब्लम भी है, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम लोग इनको जो कमीशन है वो विद इन 72 आवर्स ऑफ द सेल वो एजेंट को चल जाएगा। तो उसकी अपनी मोटिवेशन भी रहेगी, वो चाहेगा भी कि भाई बिल्डर के साथ एसोसिएट होए, काम करे, तो इससे सेल्स भी, जो प्रोजेक्ट सेल्स हैं वो भी बूस्ट होंगी इवेंचुअली। अच्छा, एक और चीज़ मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें दोनों, एक तो बिल्डर्स को वहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एजेंट्स हैं, तो एक बिल्डर्स को एक चीज़ दिख रही है कि हाँ एजेंट्स हमारे एक्टिव हैं और उनके लिए वहाँ पे इन्वेंट्री शो हो सकती है। दूसरा है एजेंट्स के लिए हमने जो टूल उनको रिक्वायर्ड है वो हमने वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट हो, कॉस्ट रिड्यूसिंग चीज़ें हो, अगर आप फिजिकली काम कर रहे हो तो आप रिमोटली ऐप पे कर सकते हो, तो ये वाला टूल भी इसमें मौजूद है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी ऐप बनती हैं, मगर उसके अंदर सबसे बड़ा जैसे होता है कि ऐप के अंदर रियल्टर्स के लिए बहुत कम चीज़ों को, अब उनका डेटा जो सबसे अहम होता है उसको ऐप अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है, अपने प्रोफेशनल मकासद के इस्तेमाल करती है, उनके डेटा को चोरी कर कर बिल्डर्स को सेल कर रही होती है। तो प्रॉपर्टी वॉलेट में भी कुछ ऐसा है या इससे आपने इसको वो किया? So, thank you for that question because I think वो चीज़ फॉल करती है प्रॉपर्टी वॉलेट के एक बहुत मेजर एस्पेक्ट पे, विच इज़ के we don't want to step into this industry to cut anyone off.
We don't want to be like, okay, tomorrow real estate agents won't be as important or the middlemen won't be as important, because in Pakistan we've seen in the past that tech solutions जो लोग लेकर आते हैं, they sometimes go and say, okay fine, we're going to get rid of the middlemen, we're going to try to do this directly, we will be the ones who are selling this. Essentially what Property Wallet is doing is empowering the real estate agent. So as Aslan already said, is that not only is that data secure, not only is that data only visible to that agent, not even the team. Let's say an agency signs up on the app and the agency owner says that my data should only be visible to me, and that is what's going to happen. On top of that, we have made sure that our data privacy laws are so strict that even within our team that data is not circulated. Property Wallet also doesn't make anything out of that because we're not selling directly. Property Wallet is empowering that agent to basically make the sale. And adding on to what we've sort of already focused on is that especially as a female in this industry, if you look around, very frankly speaking, इस इंडस्ट्री में फीमेल्स आर यूज्ड एज मे बी कॉल एजेंट्स कि आपने अच्छा कॉलिंग के लिए करा रही तो कोल्ड कॉलिंग के लिए you're gonna call them or you're gonna call them for that specific thing. But what our app is doing is empowering someone to be able to make a sale from the comfort of their home. तो अगर एक let's say freelance agent, could be a male, could be a female, could be someone who's doing this on the side, wants to get into the real estate buying selling business, wants to become a real estate agent from the comfort of their home, उनके पास उस ऐप के थ्रू वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्रॉम मेकिंग अ ब्रोशर टू मेकिंग विजिटिंग कार्ड्स टू क्रिएटिंग पेमेंट प्लान्स टू क्रिएटिंग सेल्स ऑर्डर्स, यहाँ तक कि आवर ऐप इज़ इक्विप्ड इनफ टू मैनेज सेल फ्रॉम एंड टू एंड. तो हमारे पास फिंगरप्रिंट सिग्नेचर विच इज़ ऑल AI पावर्ड, मैचिंग है एज पर नादर लॉज, एंड वी हैव फेशियल रिकग्निशन दैट कैन एसेंशली लीड देम टू जो भी आपको फाइल में चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके लिए लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है या फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है. सो वी आर प्रोवाइडिंग एन एंड टू एंड सोल्यूशन. और हमारा एजेंट का डेटा लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दैट बिजनेस, वी आर नॉट गोना बी सेलिंग, वी आर जस्ट एम्पावरिंग दैट एजेंट to be able to better make their sales, to be able to be better connected, which is what we're doing. Sorry. आपके पास आता हूँ. आप आई एम सॉरी, मेरा सवाल ये था कि इनका क्वेश्चन ये मुझे लगा कि आप ये डेटा यूज़ तो नहीं कर सकते, आप करेंगे नहीं ये नहीं कह रहे हैं, पर क्या कर भी नहीं सकते हैं, इसका क्या श्योरिटी है? अच्छा, सो टेक्निकली जो हमारी APIs हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है. सो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि जो फ्रंट एंड होता है उसके पास की होती है. सो लाइक वी कैन नॉट सी दैट डेटा, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है एंड इट्स ऑल होस्टेड ऑन द क्लाउड. वी डोंट हैव एनी लोकल सर्वर्स और एनीथिंग, सारे AWS पे, एंड सारी हमने इंक्रिप्शंस लगाई हुई हैं जिसके थ्रू हम भी वो डेटा नहीं देख सकते. इट इज़ ओनली डिक्रिप्टेड व्हेन इट हिट्स द फ्रंट एंड ऑफ द ऐप. तो वी कांट वॉच दैट. जैसे व्हाट्सएप की भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है उसी तरह से हमने भी बिल्ड की हुई है. एग्जैक्टली जो एजेंट वो डेटा डालेगा, जब तक वो लॉग इन करके अपना ID पासवर्ड डाल के नहीं, विच इज़ देयर ओन, दे ओनली नो ऑफ, वी डोंट नो दैट, जब तक वो खुद जाके वो चीज़ नहीं देखता, वी कैन नॉट सी इट. वही जैसे व्हाट्सएप होता है कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट सी द मैसेजेस दैट यू आर सेंडिंग. सिमिलरली हमारे पास वो स्टोर होता है, बट वो इंक्रिप्शन में स्टोर होता है, और वो भी लोकली नहीं. हम Amazon वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं तो AWS पे स्टोर होता है, और वो क्लाउड से फेच करके उसको सामने जब आप वापस वो एजेंट खोलेगा तो उसको दिखाते हैं. सो वी हैव नो वे टू इवन एक्सेस इट. ओके. अच्छा, बिल्डर्स इधर हमारे पास बहुत फेमस बिल्डर हैं माशाल्लाह से. आरिफ हबीब ग्रुप बैठे हैं, फिर बिन हसान है, फिर डिफकलेरिया जो कि पाकिस्तान की इस टाइम सबसे लीडिंग है. डिफकलेरिया के बाद दूसरे कोई आते हैं, फिर मखदूम साहब बैठे हैं इसके अंदर, और बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं. तो इनको आपकी ऐप से क्या फ़ायदा है, जैसे आसान अल्फाज में, कि एक आम स्टेट एजेंट तो नहीं देख पा रहा कि मुझे क्या, उसको मोबाइल भी सही से इस्तेमाल करना नहीं आता. तो इन बिल्डर्स को और उन स्टेट एजेंट को आप किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं? अच्छा, सो लाइक अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट सर्वे एज वेल, जो आजकल ज़्यादा सेलिंग स्पेशली इन दिस इकोनॉमी चल रही है वो एजेंट नेटवर्क के थ्रू चल रही है. एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द एफर्ट, एवरी बिल्डर हैज़ टू गो थ्रू द एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन एजेंट नेटवर्क. बट हम लोग वो उनके लिए ऑलरेडी कर रहे हैं. जैसे लाइक अजलान सेड, वी हैव 15,000 एजेंट्स ऑन आवर ऐप राइट नाउ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मेजर सिटी वी हैव कवर्ड, एंड दिस हैज़ बिन थ्रू नॉट लॉट ऑफ मार्केटिंग. हम लोग इसको लॉन्च किया, हम इसको लेके चले, एंड हमारे पास ये सारे एजेंट्स हैं. सो बिल्डर को क्या फ़ायदा है? बिल्डर को ये फ़ायदा है कि बिल्डर फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ हिज ऑफिस हमें अपनी इन्वेंट्री दे, हम उसको इन्वेंट्री को लिस्ट करें, वो वन टैप पे 15,000 एजेंट्स को रीच हो रही है. वो एजेंट उनकी इन्वेंट्री वहाँ से देख सकता है, वहाँ से बुकिंग रिक्वेस्ट डाल सकता है,
द बिल्डर कैन कंट्रोल दर इन्वेंट्री विदाउट इवन कॉन्टैक्टिंग अस. उनको हम पूरा कंट्रोल पैनल देंगे कि भाई अच्छा ये इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल मैंने बेच दी तो मुझे ये रिमूव करनी है, रादर देन कि वो 2000 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे SMS करे या इनको रीच आउट करे 10 एजेंट इसके पास है 10 इसके पास है. वो हमें सिर्फ नोटिफाई करेगा, हमें नोटिफाई भी नहीं करेगा, अपने सिस्टम में जाएगा, ये इन्वेंट्री को डिलीट करेगा, वो उन 15,000 एजेंट के पास से हट जाएगी. एंड उसके बाद सारे जो मार्केटिंग टूल्स जो बिल्डर को चाहिए होते हैं कि वो एजेंट को प्रोवाइड करे, और एजेंट भी चाहता है कि यार इसके ऊपर मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो, वो वहाँ पे उसके पास अवेलेबल होंगे. वो बिल्डर की प्रोजेक्ट पे जाएगा, वहाँ पे एक जनरेट इमेज का बटन हमने दिया हुआ है, जनरेट इमेज करेगा, बिल्डर की थीम पे वो पूरा उसका पेमेंट प्लान सारे उसके एडवर्टाइजिंग मटेरियल निकल आएंगे, छोटा सा लोगो एजेंट का लगा होगा, पावर्ड बाय प्रॉपर्टी वॉलेट. उससे एजेंट भी खुश, बिल्डर भी खुश. एंड डायरेक्टली जो हम पेमेंट सेटल कर रहे हैं वी आर सेटलिंग देम थ्रू वन लिंक. तो उसका क्या फ़ायदा है कि वन लिंक इज़ वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान एंड इट अलाउज अस टू एक्सेप्ट ओवर द काउंटर पेमेंट्स ओवर 26 बैंक्स. तो उससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कराची का प्रोजेक्ट है और इस्लामाबाद से कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो विदाउट एवर विजिटिंग द बिल्डर ऑफिस वो वहाँ से सेल कर सकता है. एंड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द मटेरियल दैट ही नीड्स टू मेक द पेमेंट इन दोज बैंक्स एंड वहीं से उसको फाइल भी जनरेट करके दे सकता है. इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस वर्क करता है विच मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर द बिल्डर. अच्छा, मेरे ख्याल से फहद भाई कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं. तो जी फहद भाई. भाई वही जो आपने पूछा था कि जैसे हमारे पास जितने भी स्टेट एजेंट इस वक्त काम कर रहे हैं, वही वाली बात है कि वो अभी सही तरीके से अपना मोबाइल ऐप ही नहीं देख पाते. अच्छा, अब जो जितने भी यंगस्टर हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, बिल्डर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपने इंडस्ट्री को हमारी इसको फॉलो किया. तो इसमें जो लोग हमारे साथ पुराने हैं, जिनकी सोच पुरानी है, मतलब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ पता नहीं खुल के बता पा रहा हूँ कि नहीं, कि एक सोच है मेरी कि यार मैं जिस पैटर्न पे काम कर रहा हूँ ना, ये पैटर्न मेरे लिहाज से बिल्कुल सही है, मैं इस पर बिल्कुल मुनासिब चल रहा हूँ. लेकिन जो नई चीज़ है, अब जैसे कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ों में ना चेंजिंग आ गई, हर चीज़ को बहुत आप आगे जिद्दत आती जा रही है. तो आप इसको आम बिल्डर्स में या आम जो हमारे डीलर हैं उनमें किस तरीके से, जैसे मैंने आज वॉलेट को मैंने आज जाना, आप एक अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन मुझे आज पता चला, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कंपनी में इसको लेके आऊँ, हमारे जो डीलर हैं उनको आपके साथ कनेक्ट करूँ. तो ऐसे कई बिल्डर हैं जिनको भी इन चीज़ों का नहीं पता. तो आप इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ आबाद से आप अगर आना चाहें ताकि लोगों को पता चले. मुझे सच्ची बात यह कि आज पता चला जब आपके कन्वेंशन में मैं बैठा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आई. जब बैठेंगे आपके साथ तो इंशाल्लाह और डिटेल में बात होगी. अच्छा, डिफ्लेरिया दम्बी जौहर इकबाल साहब. हाँ, सर एक मिनट जौहर. जी थैंक यू सो मच. आपके आई थिंक सवाल के दो पहलू हैं. पहली बात तो ये कि लेट्स से वो फ़ोन इतना यूज़ नहीं करता डीलर या इतना टेक savvy नहीं है, सो हाउ आर दे गोइंग टू एक्चुअली यूज़ द एप्लीकेशन. आई थिंक आज से कुछ साल पहले when Careem was launched and Uber was launched, that was the same question कि ड्राइवर तो फ़ोन पे क्यों, like how will the driver use the app and how will they actually sign up. And I feel like कि eventually जब वो ट्रांजिशन हुई, जब सामने किसी बंदे को नज़र आ रहा है कि मेरा काम जो 1 घंटे में हो रहा है. अभी फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक छोटी सी स्कीम तहत इसमें एजेंसी खुली हुई है, एक रियल एस्टेट एजेंट उसमें रेंट भी पे कर रहा है, एक छोटे मोटे ग्राफिक डिज़ाइनर को भी पैसे पे कर रहा है, दे आर ऑल्सो पेइंग समवन टू मेक देयर एक्सेल शीट्स टू डू स्मॉल थिंग्स फॉर देम. Similarly, that same person can do all of that from the app. All they have to do be like, okay, this is my project. With AI, they don't even have to write the English for the description. They can just be like, टूटी फूटी भी वो इंग्लिश लिखेंगे, वो उसको enhance करके नीचे आपका पूरा क्या कहते हैं उसका ब्रोशर बना देगा, उसका PDF जनरेट कर देगा, उस पर उनका लोगो भी आ जाएगा, उनका नाम भी आ जाएगा. लाइक यू नो ऑफन टाइम्स वी हैव रियल एस्टेट डीलर्स ऑन आवर WhatsApp, तो कभी वी सी दीज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स, समटाइम्स देयर इज कन्फेटी, कोई रेड ब्लू ग्रीन, कोई मिलाद का पोस्टर लग रहा होता है, कोई कुछ और लग रहा होता है. वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हर एजेंट के पास एक्सेस हो टू मेक क्लीन नाइस मार्केटिंग मटेरियल वेयर दे कैन ऑल्सो प्रमोट. तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसकी इतनी सी चीज़ की उसको सहूलत मिल रही है, सो दे विल बी इंक्लाइन टू गो टूवर्ड्स दैट. सेकेंडली, आपने आबाद को मैंशन किया. दिस इज़ आवर फर्स्ट interaction with this community because in before this for the last year we were developing the app.
तो हमारी ऐप की डेवलपमेंट, जैसे अजलान ने मेंशन किया कि हमने बेटा वर्जन लॉन्च किया था मार्च में, जिसके कोई 50,000 डाउनलोड मिले थे। फिर उसके बाद हमने पर्सनली लोगों से बात की, पूछा कि भाई आपको ऐप में और एजेंट से बात की। पीपल लाइक एजे आर विद अस हु आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस कि नहीं आयशा आप लोग ये कर ले, लाइक यू नो ऐड दिस, सब्ट्रैक्ट दिस, लेट्स डू दिस मोर। एंड सिमिलरली वी वांट टू एंगेज, द रीज़न वी आर हियर इज़ बिकॉज वी वांट टू एंगेज विद यू ऑल। हम आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, हम इस इंडस्ट्री में नए हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि हाउ कैन वी बेटर इम्प्रूव दिस, हाउ कैन दिस बेटर असिस्ट यू एज बिल्डर्स, एज एजेंट्स, एज डेवलपर्स, एज डीलर्स। सो आई थिंक वो एक कम्यूनल एफर्ट विच इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, जौहर इकबाल से हमारे डिक्लेरिया से। अच्छा देखिए, आपने ये बताया और आपका आइडिया जो है यकीनी तौर पर नया है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपका एजेंट को रजिस्टर्ड करने का क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, मैं एज ए रियल इस्टेट कर रहा हूँ, पिछले 25-30 साल से एसोसिएशन को भी रन कर रहा हूँ, तो हम लोग DNFBP में भी रजिस्टर्ड हैं, हम SRB में भी रजिस्टर्ड हैं। हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एजेंट्स को जो है वो बिल्कुल जो है क्लेरिफाई करते हैं कि हाँ ये एजेंट के उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरता है। अब आप एक ऐप लेकर आके, अभी बच्चे ने कहा कि 25,000 हमारे एजेंट हो गए, तो पूरे पाकिस्तान को एजेंट बना दें, लेकिन जो चीज़ आप लेकर जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट से निकले ही DNFBP में रजिस्टर्ड होकर रहे हैं और हम SRB पे कर रहे हैं, पंजाब वाले PRB पे दे रहे हैं। तो एजेंट का एक क्राइटेरिया है, अगर इसको आप जो है वो सब्ज़ी बेचने से वो कर देंगे कि जी ये इसके ऊपर आ जाएं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो ये जो अब तक हम उन इश्यूज़ पर नहीं जा सके या उस प्लेटफार्म को टच नहीं कर सके जहाँ पर जो है वो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया लाना ज़रूरी है। क्राइटेरिया क्या हो कि भाई वो किस एसोसिएशन से जो है रजिस्टर्ड है, कहाँ पर जो है वो काम करता है, क्या उसका वो है। सिर्फ मोबाइल जो है वो एजेंसी नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की डील के अंदर इन्वॉल्व होगा, वो आउटलिस्टेड को दे देता है, वो कुछ और कर देता है, तो बदनाम तो एजेंट ही होगा, चाहे वो DHA से DNFBP में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो लाहौर मॉडल टाउन से कहीं रजिस्टर्ड हो, चाहे इस्लामाबाद से कहीं रजिस्टर्ड हो। लेकिन क्योंकि जब एजेंट का नाम आ जाएगा और वो कर जला जाएगा कोई भी चीज़, तो हम सब उसको बेयर कर रहे हैं और आज तक करते हैं, क्योंकि हम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये इश्यूज़ आते हैं कि कोई भी शख्स दुकान खोलता है, बंद करता है और चला जाता है। हम जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, हम भी एजेंट हैं, वो भी एजेंट हैं, हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम आता है। तो इसको इंश्योर करें कि आपकी क्लाइंटेज बढ़ाना जो है या एजेंट रजिस्टर्ड बढ़ाना जो है, रजिस्ट्रेशन करना कि 50,000, 60,000, लाख एजेंट हमारे जो है वो 3 महीने में आ गए, 2 महीने में आ गए, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि एजेंट कहाँ से तरबियत की है, कहाँ वो रजिस्टर्ड है, वो SRB में है, वो DNFBP में है। ये एक करके अगर आप निकलेंगे तो आपके पास जो है वो एजेंट्स का एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल डेटा मौजूद होगा और वो फिर जो है वो आगे काम कर सकेगा। इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वो क्राइटेरिया क्या बनाया। अच्छा जौहर भाई, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। अभी तक होता ही, अभी थोड़ी देर पहले मिस आयशा ने बहुत प्यारी बात करी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने अरसे से मैं ये बात सुनना चाहता था, मगर आज तक मुझे ये लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला कि आप क्या चाहते हैं वो हमें बताइए, हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आता है ना, वो ये बोलता है कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर चुका, अब आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मगर इन्होंने CEO ने इतनी अच्छी बात करी कि आपके साथ हम बैठना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहते हैं और इसके लिए क्या बेहतरी हो सकती है वो हमें बताएं, हम वो आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात आपने बोली कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एजेंट ये बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम ना, जैसे आप डिफक्लेरिया हैं, आपका तो फिर ये मखदूम साहब हैं स्कीम 33, बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड हैं, मगर बहुत सारे एक वो इंसान भी है जो एक स्टेट एजेंट के साथ, चौकीदार के साथ बैठ रहा है, वो भी स्टेट एजेंट है। हर कोई एक पॉजिटिव ना, जैसे कोई अगर बैंकर कोई भी है तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, मगर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए। अच्छा, हमने इसके अंदर क्या किया, आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूँ कि हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम जैसे डिफक्लेरिया के साथ जुड़ेंगे, हम हर उस इंसान को इस ऐप में जोड़ेंगे जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, जो इस फील्ड का है। हमने उस इंसान के ऊपर वो कर देना कि जी आप इतने स्टार में नहीं आते, आप इस ऐप का हिस्सा नहीं हैं।
तो इस चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं यही तो चाह रहा हूँ आपसे यार, मैं यही चाह रहा हूँ कि चौकीदार को चौकीदारी करने दें। आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं 76 साल में कि चौकीदार मालिक बन गया है और जो मालकान थे वो सेकंड सिटीजन हो गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ चौकीदार को चौकीदारी करने दें, स्टेट एजेंट को स्टेट एजेंट ही करने दें, बिल्कुल। चौकीदार को स्टेट एजेंट ना बनाएं। तो इसीलिए जो अभी हम जिसका आपके साथ काम है- बैठेंगे। नहीं, जो जिसका काम है उसको वो काम करने दें। जो भी जिसका काम है, चौकीदार को चौकीदारी के लिए रखा है, उसको चौकीदार रहने दें। स्टेट एजेंट जो है वो कर आया है, सारा कुछ कर आया है, उसको स्टेट एजेंट रहने दें। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि चौकीदार मालिक बन गया है और मालिक जो है वो भागते फिर रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है। और हम इस मखदूम साहब का सवाल है। ये आपने ऐप बनाई है, सिर्फ स्टेट एजेंट इसमें जो है ना आप उसकी जो है एंट्री दे रहे हैं, तो स्टेट एजेंट जो है उसको अपना माल बेचने के लिए क्लाइंट की नीड होती है। तो जैसे ज़मीन.com है, हम वहाँ पर इश्तिहार लगाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ना वहाँ से हमें क्लाइंट मिलता है। यहाँ पर तो व्हाट्सअप ग्रुप इतने हैं, हमारे पास 1000 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, सब लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे अपनी प्रॉपर्टी जो है ना स्टेट एजेंट टू स्टेट एजेंट जो है वहाँ से प्रॉपर्टी ले लेता है। लेकिन आपकी ऐप में सिर्फ स्टेट एजेंट ही होंगे तो फिर हम क्लाइंट कहाँ ढूंढेंगे, ये मेरा सवाल है। जी अदनान में सो बेसिकली आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जैसे हमने बात की कि हमने बेटा वर्जन लॉन्च किया, तो हमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि भाई अभी हमने पोस्टर बना लिया, इन्वेंट्री बना ली, अब हम बेचे कहाँ जाके, जो भी नॉर्मल हमारा फीडबैक था उसी की बेसिस पे हमारे इसके 3 एवेन्यूज़ हैं। एक हमारा जो एजेंट्स के लिए एप्लीकेशन है, दूसरी हमारी जो लॉन्च होने जा रही है वो हमारी क्लाइंट के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और तीसरी हमारी बिल्डर्स के लिए पूरा CRM है। तो हम तीनों फ्रंट पे चीज़ डेवलप हो चुकी है। वही बात है कि हम मार्केट से इनफ फीडबैक लेके उसको उस तरह के उस एस्पेक्ट पे लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो राइट नाउ एजेंट्स ऐप तो आपको अवेलेबल होगी, अगर आप अभी जाके आईफोन पे या एंड्रॉयड पे सर्च करेंगे प्रॉपर्टी वॉलेट। इसकी कस्टमर ऐप और जो बिल्डर्स के लिए हमारा CRM डेवलप हुआ है वो अभी इन हाउस है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द लॉन्च होने जा रहा है। जी अदनान भाई, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, राशिद सिद्दीकी, सिटी प्रॉपर्टी डायरेक्टर। अच्छा, आप पहले तो एक मुझे ये बताएं कि फाइलर होना मस्ट है, एक आम रियल्टर है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे टैक्सेस के हवाले से डे बाय डे जो हम चीज़ें देख रहे हैं, अच्छा अगर फाइलर होना मस्ट नहीं है तो अब घर में बैठा हुआ कोई भी शख्स रियल्टर बन जाएगा, तो ये हमारे लिए रियल्टर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जैसे ज़मीन से हमें बेनिफिट भी हुआ और हमें आम रियल्टर को लॉस भी हुआ, क्योंकि अब वो घर में प्लॉट है उनके वालिद साहब के नाम, और वो प्लॉट अपने बेटे को कहते हैं बेटा ये प्रॉपर्टी वॉलेट ऐप लो और तुम भेज दो। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो हमारी बैकफुट पे चली जाएगी, एक बात। दूसरी चीज़, ये डील मेच्योर जब होती है या होगी, ये ब्लैक एंड वाइट मनी का भी सवाल होता है मेच्योरिटी में, तो इसके लिए आप मुझे ज़रा सा ब्रीफ करें। और थर्ड एक चीज़ ये पूछनी है कि देखिए, हमें रियल एस्टेट एजेंट को लॉस ये है कि अगर आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को, आम ब्रोकर को, जैसे अदनान जिलानी ने कहा कि जी एक चौकीदार है हम उसको भी रजिस्टर्ड करेंगे, नहीं। जौहर इकबाल साहब ने जैसे कहा चौकीदार को चौकीदार ही रहने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर वो चौकीदार को नो हाउ नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट जिसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपना स्टेक है, वो तो किसी भी का भी प्लॉट और किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर देगा। तो जिसने ऑफिस लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका स्टेक अपना है, तो उसको तो बेनिफिट नहीं हुआ ना इस ऐप का। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए तो लॉस है। तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी अमेंडमेंट करें, चेंजेस करें जिससे रियल एस्टेट एजेंट को फ़ायदा हो। देखिए, आप बिल्डर की तो बात कर रहे हैं, बिल्डर का तो बिल्कुल आप मेरे ख्याल से शायद चीज़ें उनकी ऑफिशियली होंगी, टैक्स पे भी होंगे, FBR भी होंगे, DNF भी होंगे, मगर अगर हम रियल एस्टेट एजेंट के लिए जो अगर हम उनको रजिस्टर्ड करेंगे, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा हाँ राशिद भाई, मसला ये है कि अभी हम जो बैठे हैं ना, अभी हम बैठे हैं ऐप, बिल्डर्स और डीलर के लिए। इन तमाम बातों के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो हम आपको अपने स्टॉल के ऊपर ब्रीफ करेंगे। मैं ये कह रहा था कोई क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जैसे हमारे पास डिफिकल एरिया में है कि उसका ऑफिस होना चाहिए, वो टैक्स पेयर होना चाहिए, उसके विजिटिंग कार्ड होते हैं, उसकी क्लाइंटेज कितनी है या कितना उसका तजर्बा है,
ये सारी चीज़ें मेंशन हो, तो वो उस एजेंसी को उसको आप देंगे। अगर जो एक आदमी आके मैं कह देता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, तो आप लिस्ट कर लेंगे, तो इसमें आपको भी नुकसान होगा कि वो आदमी को आप नहीं पकड़ सकते। हमारा तो ऑफिस है, हम टैक्स पे रिकॉर्ड पूरा आपके पास होगा, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि उनके ये चीज़ें मांगें कि आप टैक्स पेयर हैं, आपका ऑफिस है, रेंटल है, अपना है, ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए। जब भी आप मजबूत स्टेट एजेंट आपको मिलेगा, नहीं तो आप अगर जो चौकीदार को स्टेटमेंट बना देंगे तो कहीं ऐसा ही नहीं होगा बयाना लेके चला जाए। बहुत प्यारी बात करिए। इस सिलसिले को इसका सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो भी साइन अप करता है ऐप पे, आपने जैसे बात की कि रियल एस्टेट एजेंसी उसकी कहाँ पे है, उसकी फ़िज़िकल लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन वो ट्रैक करता है, आपको मैप पे मार्क करनी होती है। उसमें और क्राइटेरियाज अगर आप लोग रेकमेंड करेंगे, उसमें ऑप्शन है, तो सब कुछ इन हाउस बना हुआ है टू गेट दैट एडेड। उसके बाद डायरेक्टली वो अप्रूव नहीं होता, हमारे पास वो प्रोफाइल आती है, उसके बाद उस प्रोफाइल का अप्रूवल होता है। उसके अप्रूवल मैकेनिज्म में वी आर ओपन टू आइडियाज़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोग बोलते हैं कि ये चीज़ ऐड करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग, हमने जैसे शुरू में ही बात इस चीज़ से स्टार्ट की थी कि यू गाइज आर द वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। आप लोगों ने इतने सालों से काम किया, हम तो अभी आए, सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प सॉर्ट ऑफ make this more accessible and we would love any input from all of you. अगर जो आप कोई फॉर्म बनाती हैं तो हमारे डिप्कलिरिया से और साथियों से आप इसमें इनपुट ले लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें। मेहदी साहब अभी इस सिलसिले को वो करते हैं और हमारे स्टॉल पर आपके लिए बहुत कुछ है, तो अभी हम आपके साथ उधर बैठेंगे और आपका पूरा हम तजुर्बा लेंगे। और आज इन सब बातों का मकसद भी यह है कि हमने डिस्क्लेयर तमाम अब मैं तकरीबन आप लोगों के साथ अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन तमाम बातों पे हमने इस ऐप को मखसूस रखा हुआ है। तो इस चीज़ से तो आप हो जाएं कि चौकीदार और वो वाला मकसद नहीं होगा इंशाल्लाह। तो जिसको आप बोलेंगे हम उसको लेके चलेंगे। सर कुछ पूछना चाह रहे थे और उसके बाद वाइंड अप करते हैं, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, अरशद अवान नाम है मेरा, होमी प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद से आया हूँ। मैं रियल्टर हूँ, रियल स्टेट ट्रेनर हूँ, रियल स्टेट कोच हूँ। मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ, डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ, उनके टीम्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आपके साथ जो पहले एक क्वेश्चन हुआ एग्जैक्टली उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप रियल स्टेट के लोगों को जो रजिस्टर करेंगे, उससे पहले आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि उससे गो थ्रू करें तब आके रजिस्टर हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रॉपर्टी लिस्ट हो वो जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो लिस्टिंग पोर्टल हैं उन पे जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनके बारे में नेगेटिव वाइब्स यही हैं कि वो फेक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कुछ लोग अपना सेल फनल क्रिएट करने के लिए लो प्राइस पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कुछ लोग एक ही प्रॉपर्टी मुख्तलिफ लोग लगा रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि आपके पास जो प्रॉपर्टी लिस्ट आए, लिस्टिंग पे आए, सेल के लिए आए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये दोनों एंड अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतरीन है। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत खुश हुआ आपकी ऐप देख के माशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह रेवोल्यूशन लेके आएंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, लिस्टिंग वाला जो आपकी बात थी, हम लोग लिस्टिंग के लिए AI यूज़ कर रहे हैं एंड AI हमारा आहिस्ता आहिस्ता मॉडल इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे बिकॉज मशीन लर्निंग होती है उसमें। सो वी ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्टिंग ग्रेडिंग्स, जिससे कोई भी जो एजेंट लिस्टिंग डालता है तो उसमें पहली बार उसकी इमेज ग्रेड होती है, उसका टाइटल ग्रेड होता है, ये सिस्टम चेक करता है कि ये लिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और उसको फ्लैग कर देता है। एवरी लिस्टिंग इज़ ह्यूमनली अप्रूव्ड एट दिस पॉइंट, बट हमें AI उस पर असिस्ट करता है। AI बता देता है कि अच्छा ये लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है। और अगर अभी जब हम लोग ऑफ कोर्स बिकॉज राइट नाउ वीव जस्ट लॉन्च, तो हम लोग प्राइसिंग मॉडल्स बना रहे हैं। हम प्राइसिंग मॉडल्स ऐसे बना रहे हैं कि अगर डिफेंस में फॉर एग्जांपल सर्टेन इन्वेंटरीज लिस्ट हो रही हैं तो वो उसको पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर फीट पे ले आएगा और वो सिस्टम उसको एक एवरेज यूनिट निकालेगा प्राइस की कितने बन रही है, फिर उसमें ऑफकोर्स वैल्यू एडिशन होती है, बिल्टअप है या जो भी है, तो उसके हिसाब से द सिस्टम विल टेल अस कि अच्छा इसने इसको बहुत ज़्यादा 50% लो अंडर प्राइस किया हुआ है, तो दैट विल बी ऑल्सो फ्लैग्ड बाय द सिस्टम। तो ये सारे रिव्यू सिस्टम्स हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, बट दैट कैन ओनली बी डन वंस हम इसको रनिंग में लाएंगे, मशीन लर्निंग होगी, देन विल गेट डेटा एंड उसके बाद फिर हम इस सिस्टम्स को इंशाल्लाह अप्रूव करते जाएंगे, देन 90% एक्यूरेसी के आपके लिस्टिंग्स आएंगे इस ऐप का। दैट्स द प्लान। थैंक यू एवरीवन। सर एक और चीज़ बस फाइनल में बोलना चाहता हूँ, जैसे उस्मान ने बताया हम AI से काम कर रहे हैं, तो जो एजेंट का रेटिंग का क्राइटेरिया है वो भी AI ही लर्न कर रहा है। उसमें थोड़ी सी मैनुअल रेटिंग हमारी होती है और खुद AI भी रेट करता है। तो आगे जब हम कस्टमर पे जाएंगे तो अगर कोई क्लाइंट अप्रोच करना चाहता है तो एजेंट की रेटिंग के ऊपर करेगा। तो ये भी एक सवाल जो था पहले, उसको मैं सॉल्व करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा यूथ ऐसा है, इसको आप सब ने, और सबसे बेहतरीन मुझे आप लगे इसलिए कि आपने जो बात करी है यही है, और हम लोग इनको नहीं लेकर चलेंगे तो मैं करता रहा ना बहुत अरसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ, 30 से 32 साल बिल्डर्स के साथ मैंने काम किया है, और
करता रहा, मगर मैंने जो इतना अर्सा गुजारा मुझे लगा मैं सिफर था, मगर जब मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे लगा कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया दोबारा से। तो हम सबको मौका दे रहे हैं ये बच्चे, और हमसे ना पूछें तो क्या फ़ायदा। तो आज हमें सबको इनको सपोर्ट करनी चाहिए, तो सबकी तरफ से इनके लिए तालियां होनी चाहिए सर।